ٹرانسپورٹ ہے وہ کہیں پہ. چونکہ مجھے آپ نے بولنا چاہتا ہوں اس سال میری 6 پبلیکیشن کی ہوئی. جب سٹارٹ میں نے کیا روڈ سیفٹی پہ کام کرنا وہ 2010 تھا. 2010 میں ہم نے پہلا بینر میں اس میں تعلیم حاصل کرتا گیا. مجھے پتا چلا کہ وی آر دا لاسٹ ایکٹرز آف روڈ سیفٹی. انفارچونیٹلی ہمیں آگے کیا جا رہا ہے, یا تو ٹریفک پولیس رجسٹریشن اور لائسنسنگ کے حوالے سے ہمارا موٹر وہیکلز ڈپارٹمنٹ, یا ابھی ہماری بھی اس سال انفورسمنٹ ہوئی, یا گاڑیوں کے حساب سے SRTC یا پرائیویٹ پلیئر ہے. اگر اس روڈ سیفٹی کو ہم ایک پکچر کی ٹرانسپورٹ پالیسی, اور یہ ٹرانسپورٹ پالیسی آف انڈیا جو ہے وہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بناتا ہے. وہ نہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ بناتا ہے, نہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بناتا ہے, نہ کوئی اور ڈپارٹمنٹ بناتا ہے. ہو گیا جو فرسٹ ایکٹر, جو فرسٹ بندہ, جو فرسٹ ایکسپرٹ اس ٹریننگ میں ہونا چاہیے وہ ہاؤسنگ اینڈ, جس کو ہم سمپل لیں. ہمارا یونٹ ہوا کرتا تھا, اس میں جو پہلا فلور ہوا کرتا تھا وہ گو ڈاؤن ہوا کرتا تھا, دوسرے میں کوئی کام کاج کر رہے تھے, اور تیسرے بیسٹ موڈ اور واکنگ واز دا بیسٹ موڈ. آج ہم 100 سال آگے آج کی اسٹیٹسٹکس یہ ہے کہ اب ہم پلس 25 لاکھ جو فلوٹنگ پاپولیشن ہے, تو اکس کلومیٹرس میں 4,000 لوگ روزان گو, یہ بیلون, یہ پھیل رہا ہے. انجینئرنگ کے اعتبار سے ہم برو یہ برابر تھے ڈاٹس دور ہوتے جا رہے. جب یہ سٹیاں بڑھ گئی, اب ہم نے پٹن تک ہم پہنچ گئے, یہاں سے تک پہنچ گئے, تو اس میں اس چیز کے حوالے سے ہمیں اب فیسلٹیز چاہیے. پینے کا پانی, روٹی, کپڑا, مکان, ٹرانسپورٹ بیک بون ہے, کیونکہ ہم ٹرانسپورٹ آفیسرز ہیں سارے. میں کبھی بھی یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ MLD SRTC اور ٹرانسپورٹ کے منسلک کوئی بھی سوچتے ہیں میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ از ٹرانسپورٹ ونگ. ہم اس سروس رینکس الگ الگ ہو سکتی ہیں, نام الگ الگ ہو سکتا ہے, کیونکہ اب یہ گراف لینئر کیوں ہے, یہ کیا ہے اپ گسان پرابلم چھنا بڑھان, پرابلم گژھِ تیل کم گژھن. اگر چالاننگ سولوشن ہے پھر گژھِ, مگر سر اس کے بغیر بھی کچھ چیزیں ہیں. ورلڈ کے جو اسٹیٹسٹکس اس سال کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 8.4 بلین لوگ ہیں ان میں سے 2.4 بلین جو ہے وہ کوئی محلس کڑ, کوئی ایریاز, کوئی سٹیٹس, 30% ضرورت ٹرانسپورٹ ضرورت. میں شوپین میں رہا, ARTO کلگام میں رہا, بارہمولہ میں رہا, بڑگام میں. میری سروے کا بینچ مارک یہی تھا, ہمیں 2.4 بلین سیٹس چاہیے. انڈیا کی ہم بات کریں, ہمارے پاس 1.4 بلین 71 کروڑ 1.4 بلین جو پاپولیشن ہے انڈیا کی, اس کا 30% آپ مان کے چلیے اچھی سیٹ ضرورت. تو جب ہم دیکھتے ہیں آج کی اسٹیٹسٹکس, انڈیا میں 30 یہ ایک ریسرچ ہوا کہ 30 لاکھ بس سے ہندوستان میں کم, کیونکہ ابھی 65% کا فریٹ ہے وہ یا ٹرک لے رہی ہے یا بس لے رہی ہے. ریلوے بھی سسٹینیبل سولوشنز 100% نہیں ہے, میٹرو بھی 100% نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, میں آپ کو اس پوائنٹ پہ آتا ہوں. ابھی بھی جو پریفرڈ موڈ ہے ایک عام انسان, ایک غریب انسان کا, وہ بس ہے, سمپل بس. ابھی پھر ہم اس پہ جائیں گے ڈیزل کو موبلائز, اس میں گھر ہی ہے. میں ڈلگیٹ میں رہتا ہوں, مجھے بس اسٹاپ عمر بھر ہم چڑھے ہی نہیں گاڑیوں میں, وہ لیتی تھی, ٹھیک ہے نا, کوئی اس دماغ سے بس اسٹاپ چکتا. ممکن ہے نفر یہ مانا. پرابلم کہاں پہ آئی, 1974 تک ہمیں اربن پلاننگ ایکٹ نہیں تھا. اس کو رات پر میں آج تک پڑھوں کہ ٹو بی آنسٹ ود یو, یہ مو تمہیں ٹاسک سے پریزنٹ سچ میں بنانا بڑا اصل پریزنٹ کرے گی ہمیشہ. From traffic point of view, we call it RTA, not RTO. RTO جو افسر ہے, RTA ایک ڈپارٹمنٹ نیچے انڈر سیکشن 67 بنایا گیا. STA اسٹیٹ ٹرانسپورٹ اتھارٹی, یا پر IG صاحب چھو ممبر, ٹرانسپورٹ کمشنر چھو چیئرمین, پیشنٹ MLA آنریبل MLA آسان ممبر. کام ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کر سکتے ہیں اویئرنس کے اینگل سے, ناٹ پولیسنگ کے اینگل سے, اویئرنس کے اینگل سے وہ ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں. خوش قسمت تھا, مجھے گورنمنٹ نے 2-3 باری نیشنل اور انٹرنیشنل پروگرامز میں بھیجا. ایک پروگرام مجھے اربن پلاننگ, سوری ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ, ڈاکٹر آلوک متل, بولا مائی دس از ان مائی بلڈ. حوالے سے مجھے پتا چلا 52 کنٹریز کے لوگوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا, ہم نے بھی کیا. وہ کشمیر سے میں گیا تھا, ادھر مجھے پتا چلا کہ جو انڈیا کہتا ہے, ابھی جو اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ 1,50,000 وہ فگر ہے جو رپورٹڈ FIR ہے, جو ان رپورٹڈ ہے
गाँव में दूर दराज इलाकों में, इंडिया इज अ कंटिनेंट, बहुत दूर दराज इलाकों में शायद सलाह आप 2.5 लाख का फिगर मान के चलो। अगर आपको कोई भी अब काम सबसे अच्छा ट्रैफिक डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अब मंथली बहुत अच्छा हो रहा है। वो रिसर्च में भी 2-3 लड़के मेरे साथ हैं, वो यहाँ PhD कर रहे हैं, उनको मैंने बोला तो यूज ट्रैफिक डिपार्टमेंट इस वेबसाइट। ये मैं एवरेज बोल रहा हूँ आपको, मतलब अगर आप लेंगे 70-80% पर मंथ हमारा फिगर पहुँचने लगा है। और पिछले 10 सालों से हम जितने भी रोड, अगर तो ये पॉइंट गई ना क्लियर तो अगर समझ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट चुके अगर ये डालगेट तो हारमन अप्रूव अस नफर अस नफर मजस खसान अत वन अवर्सन मज डिवाइड करो पीक आवर, स्लैक आवर एंड बिजनेस एज यूजुअल दिन को। सर मैंने डालगेट और हारमन का देखा, मुझे 10,000 लोग पानी गाड़ी में ड्राइवर क्या मैं अपनी गाड़ी में आया। सर मेरी गाड़ी में कितनी सीट्स हैं? 4-5। तो हम पैसेंजर काउंट यूनिट के एंगल से इसको इंजीनियरिंग में बोलते हैं 1.5। We take the figure as 1.5। मैं बोलता हूँ कश्मीर पीछे आप 2 ले लो, अब एवरेज लो कि एक गाड़ी में 2 बंदे जो हमारे पास पैसेंजर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। बसेस हैं ही नहीं सिटी में, स्मार्ट सिटी की 100 निकाल दो आप, 100 गाड़ियां वो आ गई, मल्टीप्लाइड बाई 50 सीट्स 5000। आप वो मिनी बस हो जिनकी फिटनेस भी खत्म हो गई वो 100 उनके भी ले लो 5-6 हजार 7,000 सीट। सर मुझे जो चाहिए ना सिटी में वो मुझे चाहिए 20 लाख का 30 बस। आई नीड 2 लाख 3 लाख सीट्स मिनिमम टू मोबिलाइज दिस सिटी सेफली। जो 30% ऑफ द जो रजिस्टर हो रही है वो अनरजिस्टर्ड मुझे अब लग रहा है 5% वो भी आ रही है। 1 लाख गाड़ियां आपको कश्मीर में ऐड होती हैं, 10 साल में 10 लाख गाड़ियां ऐड होंगी। और हमारे पास प्लान क्या है? हम इस ट्रैफिक को मैन्युअली अब मैनेज नहीं कर पाएंगे। हकीकत से होते बनाए थे भी तुम ट्रैफिक पुलिस फोर्स सोचा मतलब ये मैंने परसों स्पेशली मीडिया पर्सनल्स आज का जो ये प्रोग्राम है सर, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन रोड सेफ्टी जो डायरेक्टली स्पॉन्सर किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नॉर्थ में, ये 2nd लेवल का प्रोग्राम है इस स्टेट में, इस यूटी में, जो अभी हमारे साथ and they are doing a lot of job on research based. There are a lot of publications from their institute. They collaborate with IITs of India. They collaborate with IIHM Bangalore. They are doing a tremendous job in the field of urban planning, urban transport planning, active transportation, safe, this road safety. As far as this national courses and what I came to know that it's a collective effort. One man cannot do. हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि हमें सब कुछ पता है और जो सोल्यूशन शायद पे ना हो, ये लोकल बेस्ड सोल्यूशन जो हम पिछले 1 घंटे से बात कर रहे थे, आप भी गौर से सुन रहे थे, हम देख रहे हैं कि एवरेज 13-14 लाख लोग मर रहे हैं। हर दिन 400 लोग एक्सीडेंट्स के शिकार होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। ये इमेजिन अगर हम एनालॉजी यूज करें, ये हर दिन का एक क्रैश होता है। यूजुअली जब जो भी कोई जहाज उसकी कैपेसिटी जो सीटिंग कैपेसिटी है अराउंड 300-400 के अराउंड उनकी होती ही है। तो अगर ये इसको हम समझे हर दिन का एक क्रैश, आप देखिए कि कितनी आउटक्राई होगी, कितनी आउटरीच होगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, भाई क्या हो रहा है? हर दिन हमारा एक जहाज क्रैश हो रहा है, हर दिन 400 लोग मर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको रोड सेफ्टी के तनाजुर में पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो 400 एक्सीडेंट हो गया, 5 लोग मर गए, इसके बाद में 3 लोग मर गए, हम इसको एडप्ट नहीं कर पाते। फैक्ट्स की फिर से डेटा की बात करें तो 11% जो पूरे वर्ल्ड में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इंडिया में होते हैं।
ยุติภาพออกมาแล้ว yes คือทำให้ผมชาติการรู้สึกเกิดชิดอยู่แล้วऔर ये 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रोड सेफ्टी पे है जो हम हर साल अलग अलग स्टेट्स में जाके करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के लिए। तो ये 3 दिन का प्रोग्राम हमने इस श्रीनगर में रखने का मकसद हमारा ये था कि जो यहाँ पे थोड़े से एक्सीडेंट्स और नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ बढ़ रही हैं, लोगों को थोड़ा अवेयर किया, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, ट्रैफिक है, या फिर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, ये स्मार्ट सिटी जो नया आपका डेवलप हो रहा है, तो किस तरह से लोगों को थोड़ा अवेयर किया जाए और एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके, ताकि विदाउट रोड मुश्किल है लोगों का मूवमेंट करना। जैसे हम बिना हवा और बिना पानी के नहीं जी सकते, वैसे ही रोड पे बिना रोड के भी जीना मुश्किल है। बिना रोड के हम कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक नहीं बैठ सकते। तो लोगों को थोड़ा अवेयर करना ज़रूरत है, तो उसी के लिए हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, ताकि नए रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या हैं, सिर्फ चालान रखने से ही काम नहीं चलता। हमारा मोटिव है लोग अवेयर हो जाएं कि हेलमेट पहनना ज़रूरी क्यों है, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी क्यों है। 50% ऑफ द फैटेलिटीज़ अबाउट 1.73 लाख में से 50% हमारे 2 व्हीलर्स और पेडेस्ट्रियन मरते हैं। क्यों मरते हैं? वो तो कोई बहुत तेज़ नहीं चलते, पेडेस्ट्रियन क्यों मरता है? शायद वो रोड के रूल्स रेगुलेशन से अवेयर नहीं है। तो कोशिश की जा रही है कि उनको थोड़ी भी लोगों को भी अवेयर करें, डिपार्टमेंट्स को भी अवेयर करें, ताकि हम इस फैटेलिटीज़ के नंबर को कम किया जा सके। अभी इसमें हमारे ट्रैफिक पुलिस है जो श्रीनगर और कश्मीर से आई हुई है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, लगभग 10 से 12 लोग हैं, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन JKSRTC के लोग हैं, और इसके साथ में स्मार्ट सिटी से ही लोग आए हुए हैं। ये प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की कोशिशें यही रहती हैं कि कैसे ट्रेनर्स को ट्रेन करके रोड सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए। देश भर के साथ साथ इस बार जम्मू कश्मीर को फोकस करते हुए, जहां
एक्सीडेंट्स की रेट हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा अलार्मिंग दिख रही है, वहाँ अवेयरनेस एजुकेशन और कम्युनिकेशन की जो कमियां पाई जा रही है उसे बेहतर अंदाज में एक रोबस्ट मैकेनिज्म कायम करने की ज़रूरत है। फ्यूचर ट्रांसपोर्ट और कमिंग जनरेशन के लिए ईज आउट करने का जो ये प्रोग्राम है, जहां हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और मुतलका एजेंसीज को इन्वॉल्व करके उनको ट्रेन करके ही उनकी ट्रेनिंग्स को यकीनी बना रहे हैं, ताकि रोड सेफ्टी के इस प्रोजेक्ट को यकीनी बनाया जाए। जहां देश भर में एक्सीडेंट रेट का एक आंकड़ा अलार्मिंग है, वहां ज़रूरत है अवेयरनेस एजुकेशन और कम्युनिकेशन को यकीनी बनाने की। इस हवाले से एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट ये प्रयास जारी रखा हुआ है और जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीर के इस शहर श्रीनगर में आज ये 3 रोज़ा जो ट्रेनिंग वर्कशॉप इन ऑफिसर्स और मुतलका एजेंसी के लोगों को दिया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट को हम यकीनी बना सके, ताकि आने वाले वक्त में एक बेहतर ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक निज़ाम कायम किया जा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो UN डिकेड ऑफ एक्शन ऑन रोड सेफ्टी जो ब्लूप्रिंट बना है उसमें एक वर्टिकल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्योंकि दिन ब दिन जो रिसर्च हो रहे हैं और इंटरवेंशंस हो रहे हैं, हम अपडेटेड रहे। वो ज़माने गए कि किसी ने कोई डिग्री की और वो उम्र भर हमें उसकी स्टोरियाँ सुनाता रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो मॉर्थ की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से 3 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की तरफ से। यहाँ पे ये ट्रेन द ट्रेनर्स है, जो ऑलरेडी ट्रेनर्स हैं, जो अपने फील्ड में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको आज बुलाया गया है। फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस, SRTC, मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट और भी कुछ डिपार्टमेंट हैं। तो मेरा मानना है कि दिस अ वेरी पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ रोड सेफ्टी कल्चर इन अवर स्टेट। तो आपने भी इस पर एक स्पीच अपनी बोली है, तो क्या लगता है आपको कि रोड सेफ्टी कितनी इम्पोर्टेंट है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए आए दिन अमवात होते हैं। आप देखिए जो फिगर हमारा 900 to 1000 है, ये बोलना कितना आसान है। अगर हम कंट्री की बात लें तो प्लस 2 लाख मर रहे हैं, 1.56 लाख to 2 लाख। अनरिपोर्टेड भी एक्सीडेंट्स काफ़ी हैं। वर्ल्ड में 14 लाख इज़ मोर देन अ वॉर। इट्स अनबियरेबल। ये बोलना कितना आसान है, मगर इसके रिपरकशंस कितने ज़्यादा हैं। अभी से अगर हम अवेयर हों, मैं तो चाहता हूँ कि मैंने रिक्वेस्ट की है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट से कि एक इंस्टीट्यूट या रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट एक यहाँ पे स्टार्ट हो। वी हैव सच गुड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ, जोग्राफी डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, वो कर सकते हैं रोड सेफ्टी पे काम। NIT है, SSM है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, पॉलिटेक्निक्स है, ऑल शुड कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट अ रोड सेफ्टी वर्टिकल। तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम की कितनी जरूरत है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस, पोलियो तभी ख़त्म हुआ जब लोग अवेयर हुए, तो ऐसे ही एक्सीडेंट्स भी तभी कम होंगे जब अवेयरनेस होंगी और साइंटिफिक इंटरवेंशंस होंगी बेस्ड ऑन रिसर्च।